Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. In the previous session, I had started the very important topic of biology, that is reproduction in organism, and I had covered asexual reproduction part. In continuation with this, today I will discuss about the sexual reproduction. So sexual reproduction means in which this is a mode of reproduction in which there is the involvement of two parents. There will be the formation of sex organs. As we had already discussed that in asexual reproduction there is no requirement of sex organs, but in case of sexual reproduction there is a need of the formation of sex cells, that are gametes. In the process of sexual reproduction, there are two parents involved. That's why it is called as biparental. While in case of asexual reproduction, it is uniparental. Okay. So biparental formation of sex cells, that is formation of gametes, and it involves meiosis, that is reductional division will take place in the case of sexual reproduction, and the very most important event, that is fertilization, also known as syngamy. These all processes were lacked in case of asexual reproduction, but it will be present in the sexual reproduction. Okay. Offspring produced are not identical to parents or amongst themselves. In case of asexual reproduction, we had learned about one term, that was clone formation. Clone formation means कि morphologically and genetically the offspring will be same, but in case of sexual reproduction there will be no formation of clone. Clone formation will be absent. The individual which will produce as a result of sexual reproduction will be not identical. ठीक है? So it leads to variation. That's why it leads to variation. The offspring which will produce in the case of sexual reproduction will be totally different from their parents. Okay, तो totally different होंगे तभी क्या होगा, वेरिएशन होंगे. ठीक है. बायपेरेंटल है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो दोनों पेरेंट्स अपना अपना क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेंगे. So that's why there will the involvement of biparental, as well as the offspring that is produced will be totally different from their parents. Okay. So organism produce inherit chromosome genetic material contributed from two different gametes. Two different gametes, why? Because there is the involvement of two parents. Okay. So one from male gamete and one from female gamete, then fertilization process will take place, and then the resulting offspring will be different. We'll discuss each and every event that will take place in the case of sexual reproduction in detail later on. Okay, so it produces variation, and we had discussed that if there is a variation, then it leads to the evolution. ओके. इट इज वेरी स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. फर्स्ट, इसमें बाय पेरेंटल है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. सेकेंडली, इसमें सेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, सेक्स सेल्स बन रही हैं, गैमेट्स बन रही हैं, जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. वी विल डिस्कस इट. तो ये स्लो प्रोसेस है. व्हाइल इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट वाज फास्ट, बिकॉज देयर वाज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ओके. दैट्स वाई इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे. ठीक है. इलोवरेट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई. वहां पे यूनिपेरेंटल था, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था, तो वो सिंपल प्रोसेस था. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल सी दैट देयर आर मेनी इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. So very important that it is slow, elaborate and complex. Okay, so these are some general characteristic of sexual reproduction, that is biparental sex cells formation, that is gametes will be formed, one male gametes and female gametes. Third is syngamy, occurs fertilization होगा. ठीक है. syngamy को ही fertilization कहते हैं. syngamy होगा, fertilization होगा. ठीक है. offspring produce will be totally different from parents. ठीक है. it leads to variations leads to evolution, and very important that it is very slow process, elaborate and complex. So these are some general characteristic of sexual reproduction. Moving forward, so what are the events that takes place in the sexual reproduction? जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उससे पहले के कुछ इवेंट्स होंगे और उसके बाद के कुछ इवेंट्स होंगे. हमने बात करी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है इन केस ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले के जो इवेंट्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के कुछ बाद इवेंट्स होते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले इवेंट्स हैं, दैट इवेंट्स आर कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद के जो इवेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो पहले बनेंगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो दीज आर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स प्रायर टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। What are these processes? The two main pre-fertilization events are, first is gametogenesis, very important. Gametogenesis. Gameto means gametes, sex cells, and genesis means formation. So it refers to the process of formation of gametes, male and female gametes. दो टाइप के gametes बनते हैं, मेल और फीमेल gametes. दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो दोनों पेरेंट्स गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब ये जो गैमेट्स हैं या इनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स। ओके, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोगैमेट्स। ओके, व्हाट आर आइसोगैमेट्स? आइसो मतलब होता है सिमिलर, ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सिमिलर हो एक दूसरे के, उनको हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं। आइसो वर्ड मतलब होता है सिमिलर। तो व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे आर नोन एज आइसोगैमेट्स, और आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स। ओके, तो जहां भी कभी टर्म आइसो आता है या होमो आता है, इट मीन्स सिमिलैरिटी, आइडेंटिकल। ओके, सो अगर दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स बोलेंगे या फिर होमोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लाइडोफोरा, बहुत सी ऐसी एल्गी हैं, लोअर प्लांट्स हैं एल्गी, एक्सक्यूज मी, सम एल्गी लाइक क्लाइडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब में हमें आइसोगैमेट्स देखने को मिलता है। ये क्लाइडोफोरा के गैमेट्स हैं, देखिए मॉर्फोलॉजिकली दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं, चाहे हम इसको मेल गैमेट बोल दें, चाहे हम इसको मेल गैमेट बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इसको फीमेल बोल दें, या वाइस वर्सा कर दें, इसको फीमेल कहें या इसको मेल कहें, तो दोनों गैमेट्स आपस में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे आर नोन एज आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। एग्जाम्पल्स, क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, फंजाई में भी मिलता है जैसे राइजोपस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल सबके याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, सो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। आइसोगैमेट्स में क्या आ जाएंगे, क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, राइजोपस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स मतलब हो गया सिमिलर, हेट्रो वर्ड जहां यूज होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, कि हम डिस्टिंक्ट कर सकें कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमेट है, तो हम उसको कहेंगे, वो किस कैटेगरी में आएगा, हेट्रोगैमेट्स में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इन सम एल्गी सच एज फ्यूकस, वॉलवॉक्स, कारा, ये एग्जाम्पल्स है जिसमें हेट्रोगैमेट्स देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेल ह्यूमंस भी आते हैं एग्जाम्पल, हेट्रोगैमेट्स। ह्यूमंस में भी जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉट सिमिलर होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। जैसे ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट को ह्यूमंस मेल गैमेट को मेल स्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल इज ओवम, एग। दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिसिमिलर है, नॉट आइडेंटिकल है, तो इनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेट्स कहेंगे, ठीक है। तो इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों डिस्टिंक्ट हैं, उसमें हम जनरली मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड बोलते हैं या फिर स्पर्म बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फीमेल गैमेट को एग या फिर क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। दोनों ही आपस में क्या है, डिसिमिलर है। ओके, बहुत वेरी वेरी आईएमपी याद रखिएगा। व्हाट आर स्पर्म, मेल गैमेट्स, ठीक है। जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम एंथ्रोजॉइड टर्म यूज करते हैं या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं।
ठीक है, तो पहली जो प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वो क्या हो गई, गैमेटोजेनेसिस हो गई। गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, आइदर मेल बोथ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं ये गैमेट्स, या तो ये सिमिलर होंगे आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स इनको बोलते हैं। अगर ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल गैमेट है, तो इट विल कम अंडर होमोगैमेट और आइसोगैमेट। ठीक है, why, and second is heterogametes in which both the gametes are morphologically distinct. Okay, as example in humans में मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है और फीमेल गैमेट ओवम कहलाता है, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिस्टिंक्ट है। ओके, नाउ सेकेंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट बन गया, अब इन गैमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है, तो इसको क्या कहेंगे, गैमेट्स ट्रांसफर। After the formation of male and female gametes, compatible gametes must be physically brought together to facilitate the process of fertilization. अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होगा, दोनों गैमेट्स का पास आना जरूरी है, तो इसको हम गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन इन सिनगैमी। व्हेन गैमेट्स विल ट्रांसफर दे विल मीट एंड देन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड इट इज टर्म्ड एज सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर गैमेट्स मोटाइल हो, ठीक है, या फिर गैमेट्स क्या हो, नॉन मोटाइल हो। तो इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं इन केस ऑफ फंजाई एंड एल्गी, कुछ फंजाई में। ठीक है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या होता है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है बट फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। तो वहां पे कैसे गैमेट ट्रांसफर होगा, तो देयर इज नीड ऑफ मीडियम, वहां किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी जिसके थ्रू क्या हो, गैमेट्स का ट्रांसफर हो। तो देयर इज नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव टू रीच द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये मीडियम वाटर हो सकता है, एज इन केस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। गैमेट की ट्रांसफर के लिए क्या है, वाटर इज द मीडियम, बिकॉज इन दिस केस फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। ओके, सो वाटर एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या होते हैं, मेल गैमेट ट्रेवल करता है और एंड इट रीच टू फीमेल गैमेट एंड देन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। Okay, in seeded plants like gymnosperm and angiosperms, in seed plants both male and female gametes are non-motile, दोनों ही non-motile हैं। ठीक है, एक केस हुआ कि एक केस जब दोनों non-motile हो, एक केस जब मेल मोटाइल है फीमेल नॉन मोटाइल है, और एक केस जब दोनों नॉन मोटाइल हैं, तब क्या होगा, जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं वो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल हैं। Here pollen grains are the carriers of the male gametes and with the help of pollen tube, very important, it reaches ovule which has the egg. So जो higher plants हैं, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स की बात करें और एंजियोस्पर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो किससे पास होते हैं, पॉलन ट्यूब की हेल्प से वो रीच करते हैं कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास। पूरे डिटेल में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, अभी ही याद रखिएगा कि इन सीड प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड हेयर पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स, और ये मेल गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज पॉलन ट्यूब, उसकी हेल्प से क्या होते हैं, ये ओवम तक या एग तक रीच करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोसेस, अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स में भी हमने पढ़ा कि टाइप्स, आइसोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स,
देन देयर विल बी द फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो सेकेंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाज गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। तो द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है, सिनगैमी है। So this process is called syngamy or fertilization, which results in the formation of zygotes. So when male and female gametes fuse, जब male और female gamete, this is the symbol, this is a symbol for male gamete and this is a symbol for female gametes. So when male and female gametes fused, this process is called fertilization. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन, जाइगोट बनता है। तो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, इट दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड देयर विल बी द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। ओके, लेटर ऑन जाइगोट डेवलप करता है टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाने के लिए। अब सिनगैमी कैन टेक्स प्लेस इन एक्सटर्नल मीडियम एज वेल एज इनसाइड द बॉडी। अभी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है या फिर इंटरनल हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इट कैन बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल सिनगैमी और इंटरनल सिनगैमी। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। तो सिनगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज एक्सटर्नल fertilization. If any fertilization which occurs outside the body of the organism, that will come under external fertilization. ठीक है, और ये ज्यादातर aquatic organisms में देखने को मिलता है. It is shown by majority of aquatic organism like most of algae, fishes as well as amphibians. Okay, amphibians में क्या आ जाते हैं, frogs. Okay, इनपे external fertilization देखने को मिलता है। और अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऑफस्प्रिंग एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, तो वहाँ पे उनको क्या, उनके प्रीडेटर्स के लिए खतरा है, मतलब उनको अपने प्रीडेटर से खतरा है ज़्यादा, क्योंकि वो एक्सटर्नल मीडियम में है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी है। तो a major disadvantage associated with it is that the offsprings are extremely vulnerable to predators. Okay, predators उनको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेजेंट है, बॉडी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, तो इस वजह से उनको वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू प्रीडेटर्स के लिए। तो ये एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब सिनगैमी इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगी, फर्टिलाइजेशन व्हेन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट विल टर्म एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, इट प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है, कुछ स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है, और कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट कैन बी ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, now there will be some post fertilization event. अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गए, इवेंट्स होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस हुई, हमने देखा गैमेटोजेनेसिस हुई, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, गैमेट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गैमेट्स ट्रांसफर हुए, गैमेट्स का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ,
उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट बनेगा उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू जनरेशन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होगा, दो गैमेट्स से बन रहा है, n+n, इट विल बी डिप्लॉयड, ठीक है। एंड इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। एक लिंक है, अगर पूछे कि दो जनरेशन के बीच का लिंक क्या है तो इट विल बी जाइगोट, ठीक है। देन जाइगोट विल डेवलप टू फॉर्म अ embryo and this process is known as embryogenesis, very very important, embryogenesis, ठीक है। सो embryogenesis क्या है? The process of development of embryo from zygote. Embryo is multicellular stage in life cycle of a plant or animal prior to formation of an independent individual, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल जब से बनने से पहले एम्ब्रियो बनेगा, वो एम्ब्रियो कंप्लीटली क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, टू फॉर्म अ इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले के प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें जाइगोट बन रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। नाउ हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है। सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर दे? देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था यूनिपैरेंटल, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व था, यूनिपैरेंटल था, हमने देखा था अमीबा के केस में, हमने देखा बाइनरी फिजन हो रहा था, सिंगल पैरेंट से दो डॉटर सेल्स बन रहे थे। बडिंग में एक ही पैरेंट इन्वॉल्व था, उससे उससे डॉटर सेल्स बने, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन देखा हमने, रीजनरेशन देखा, ठीक है। तो हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पैरेंट, ओके। तो in case of asexual reproduction, uniparental, while in case of sexual reproduction there will be the involvement of two parents, that is biparental. Bi means two parents, okay, so biparental, two parents involved हैं, ठीक है। when single parents involved there will be no gametes formation, कोई gametes formation नहीं था, देखा था हमने asexual reproduction के केस में। but in case of sexual reproduction there is the formation of gametes, gametes will be formed, okay। देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे गैमेट्स ही नहीं बन रही हैं। जब गैमेट्स नहीं बन रही हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन केस ऑफ asexual reproduction, but in case of sexual reproduction fertilization takes place। और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इसके बेसिस पे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है या फिर इंटरनल हो रहा है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम वन सेल और अ पार्ट ऑफ वन पैरेंट। देखा था हमने, एक पेरेंट्स के पार्ट से बन रहा था, या फिर उस पूरे पेरेंट से बन जा रहा था। बडिंग हुई थी, बडिंग का ही पार्ट, एक पेरेंट पार्ट में बल्जिंग हुई, बर्ड बने, और उस बर्ड से क्या हुए? नए ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट, जब वन मेल गैमेट वन फीमेल गैमेट फ्यूज्ड एंड दे विल फॉर्म द जाइगोट, और वही जाइगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था क्लोन फॉर्मेशन। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, क्लोन बन रहे थे। क्लोन्स क्या थे? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हो रहे थे, ठीक है। those offspring which are morphologically and genetically similar, identical to their parents are known as clone, उनको हम क्लोन कह रहे थे, ठीक है। लेकिन in case of sexual reproduction there will be no formation of clone, जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो टोटली डिफरेंट होगी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट्स से. देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोन. ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी. चाहिए जब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं तो किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द वेरिएशंस होते हैं. इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएबिलिटी एंड हेंस ऑफ इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस. वेरिएशंस होगा. व्हाट इज वेरिएशन? डिसिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. जब कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसिमिलैरिटीज होंगी तभी तो इवोल्यूशन होगा. ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लीड्स टू और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, द आंसर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में एक की रोल प्ले करता है. ठीक है, क्यों की रोल प्ले करता है? बिकॉज जो न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, so it introduces variability and is hence of evolutionary importance. Okay, and last difference is क्या था कि जो asexual reproduction है it is very quick process. quick था, simple process था, fast था, rapid process था. Okay, क्यों rapid था? because सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. देयर इज नो इवेंट्स लाइक गैमेटोजेनेसिस नहीं होना है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है. ठीक है, सिंगैमी नहीं होनी है. तो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस और बहुत क्विक फास्ट प्रोसेस है. ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर देखने को मिलता है. और ये कैसा प्रोसेस है? इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेनी इवेंट्स, मेनी प्रोसेसेस. ओके, एंड कॉम्प्लेक्स है. अब सारे प्रोसेस बन रहे हैं तो हर प्रोसेस को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा. कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायरमेंट्स है हर प्रोसेस को फुलफिल करने में. तो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, सो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि बाई पेरेंटल है. साथ में हमने देखा कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, याद रखिएगा. ठीक है, एक क्विक समरी करते हैं. जैसे हमने देखा फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स हुए प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स को हमने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? गैमेट्स बने, जिसको हमने क्या टर्म्स दिया? गैमेटोजेनेसिस बोला. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बने. ठीक है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बना. ये जो मेल और फीमेल गैमेट है ये आइसो हो सकता है या फिर हेट्रो हो सकता है. ठीक है, अगर सिमिलर गैमेट्स हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स हैं तो इसको हम आइसोगैमेट्स कहेंगे. अगर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं ये आपस में, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट्स बोलेंगे. और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस है ना. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? ह्यूमंस. ठीक है, इसमें मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं या फिर स्पर्म्स बोलते हैं. और फीमेल गैमेट्स को एग या फिर ओवम बोलते हैं. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गई. गैमेटोजेनेसिस के बाद कौन सी प्रोसेस हुई? गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, अब गैमेट्स जब बन गए हैं तो उनका ट्रांसफर होना जरूरी है ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो फ्यूजन होगा. फ्यूजन होने के लिए दोनों का पास में आना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है. सो गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, गैमेट ट्रांसफर में हमने देखा कि गैमेट्स मोटाइल हो सकते हैं. मे बी द चांसेस दैट देयर बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. ठीक है, और क्या हो सकता है? बोथ गैमेट्स मोटाइल हो सकते हैं या फिर मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट्स क्या है? नॉन मोटाइल है. तो वहां वाटर मीडियम बनता है थ्रू विच द मेल गैमेट्स ट्रांसफर एंड रीच द फीमेल गैमेट्स. और इन केस जब दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में, वहां पे पॉलन ट्यूब की हेल्प से क्या होगा? मेल गैमेट ट्रांसफर होगा और कहाँ रीच करेगा? एग के पास या फिर ओवम के पास रीच करेगा. ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे. वहां पे हम देखेंगे कि कैसे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं टू फॉर्म अ मेल गैमेट. और फिर वो पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब की हेल्प से रीच करते हैं कहाँ पे? एग के पास. ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ओके, तो गैमेट ट्रांसफर हो गया. अब गैमेट ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? फ्यूजन होगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन मीन्स
देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स। अब ये कहाँ हो रहा है फ्यूजन, इसके बेसिस पे भी ये दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हमने पढ़े, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, व्हेन मेल प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट्स एन हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, दोनों फ्यूज करेंगे। अब ये फ्यूजन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, जाइगोट। अब n प्लस n क्या होगा, 2n, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मिलके क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जाइगोट बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, दो जनरेशन को जोड़ने की कड़ी क्या है, जाइगोट है, ठीक है। अब ये जाइगोट का डेवलपमेंट होता है टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, और यही एम्ब्रियो डेवलप करता है टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, यही क्या बना लेगा, न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ओके, सो ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम गैमेट ट्रांसफर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सो न्यू इंडिविजुअल जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। जाइगोट क्या है, कनेक्टिंग लिंक है दो जनरेशन के बीच की, ठीक है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिजल्ट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। पहली सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। और फिर जाइगोट डेवलप करता है, माइटोसिस होती है, बहुत होता है, डेवलपमेंट होती है, अलग अलग पार्ट्स का एम्ब्रियो बनता है। वी विल डिस्कस, ठीक है, प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, रूट शूट रूट स्टेम लीव्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारे पार्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, तभी तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा। सेकेंडली वी विल डिस्कस की ह्यूमंस में कैसे, एनिमल्स के केस में कैसे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ठीक है, कैसे फीटस एम्ब्रियो से फीटस का डेवलपमेंट होता है, बेबी कैसे डेवलप्ड होता है, तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, सो इन टुडेज सेशन वी हैड डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आज के लिए इस वाले सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इन successive session we will discuss about the sexual reproduction in plants and sexual reproduction in animals. So ऐसे आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।